Hi Hi everyone, everyone, welcome welcome to to Made Made in in Making. Making. Today we're sitting down with the man behind the sizzling skewers and the perfect biryani, Mr. Irshad Saudagar, the driving force behind Niaz. What started as a humble eatery has now become one of Belgaum's most loved restaurants, taking Belgaum's biryani to the world. Hi Shad sir, how are you doing? Hi, thank you. I'm doing good. It's an honor to have you on the podcast. Yeah, So, pleasure. to kick things off, tell us a little about yourself and your journey before Niaz. It's all started back in 1989. This restaurant was started at that time. Uh, Prior to that, my family was in grocery business, a small shop. Unlike today's era, the grocery shops were not uh, uh, like DMart or the small grocery shops used to be there at that time. So we used to own our grocery shop. So and that also in the Khade Bazaar. But back in 1989, the master plan took place, and we unfortunately, or you can say, the fortunately, we lost that shop in master plan. So how come we ventured into our family, me, with three brothers and my father, we ventured into the restaurant business. The whole idea came through. So we were in the grocery business, and we were used to keep in touch with lot of chefs of that time who used to come and buy the groceries from us for their orders. So they gave us the idea to venture into the restaurant business. So in 1989, when we lost our shop in Master Plan, so we took up a small place of around 400 square feet near bus stand. So that time also 35 years back, Belgaum was not that crowded. But being in front of the central kitchen in the heart of the city, a restaurant got clicked very well. Our biryani, our recipes, and the price size, the portion size were accepted well by the commuters of Belgaum. And Belgaum was that time all vegetable market, all tourist and transport stations were nearby this area only. And being in a center of a city, our restaurant got popular uh, quite fast in Belgaum and around the cities. So if we're in Belgaum, everybody knows the name Niaz. We've all eaten at Niaz. So where did it all start? Uh, Yeah. So I got your point. That time, as I said, okay, our price size and the portion size of biryanis were very familiar. People were. It soon became a regular restaurant and a regular eating point of a Belgamite. So I think now, if I sit at this moment and think, what was the reasons behind that popularity, I'll say, we touched to the common man. Biryani was not like this time. Right now, the biryani is in everyone's plate. So back in those days, where the apple is to be the luxury fruit, right? So biryani was a very rare item to get cooked in homes regularly. So we bought that royal food to the common people. That's what I think. And where people used to say, "Okay, I ate biryani today," or "I'm eating biryani today," was a big talk that time. So, but that we made that available to the auto drivers, to the cart pullers, yeah. So that gave us a very prominent base of a customer, and our popularity increased from. I think that made our place more crowded, and there were regular eaters. So biryani, like nowadays, how it doesn't need any introduction, but that time it was a royal dish, and it was very affordable. If I tell you, we used to sell a portion of a biryani which is getting sell now at 200 rupees, used to get sell at 2 rupees 50 paisa that time. So it was that era. So that was a popularity, I Almost think. 100 times less than. Yeah, 100 times you can say. So when you started Niaz initially in 1989, how did the crowd react when they got to know it? आप बोले कि common people को connect हो गया बिरयानी. So how was the reaction? So was it sudden, ऐसे sudden exposure मिल गया या थोड़ा time लगा base बनने के लिए Niaz का?
नहीं, आई थिंक इट वाज अ सडन, ये दैट वाज अ शॉकिंग आल्सो फॉर अस, क्योंकि उस टाइम पे फॉर अस रेस्टोरेंट वाज अ वेरी न्यू बिजनेस, सो वी वर द न्यू इन द ये, एंड उस टाइम पे क्या था कि द होल साइज ऑफ द रेस्टोरेंट वाज अराउंड 20 to 25 सीटर, so restaurant used to look crowded all the time. So that was another story, मतलब that was another point कि जहाँ पे लोगों को लगता था कि यहाँ पे ओवर क्राउड है, रश है, लोग फॉलो कर रहे हैं, तो लोगों का एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा था वहाँ पे. एंड टू टेल यू, people used to eat biryani, now also people eat, but दिस प्लेस बेइंग के यहाँ पे जितने भी अभी जैसे उस टाइम पे जो ट्रांसपोर्टेशन थे, ट्रैवलर्स थे, उनका सबका ड्रॉप पॉइंट बेलगाम में पहले यहाँ था. लाइक हाँ, लाइक रामदेव जैसा है तो पहले यहाँ पे भी था. सो देयर वर 2 पॉइंट्स, रामदेव एंड हियर. सो बट ये ज्यादा पॉपुलर था उस टाइम पे. सो यहाँ पे जो भी ट्रैवलर्स आते थे उनको ड्रॉप डाउन एक ही यहाँ पे मिलता था. सो उनका ड्रॉप यहीं पे होता था. तो बेंगलुरु से जो टूरिस्ट आते थे, दे यूज्ड टू ईट बिरयानी बिकॉज देयर द साउथ इन कल्चर इज डिफरेंट. दे ईट बिरयानी इन द मॉर्निंग आवर्स ऑल्सो. तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट में भी लोग बिरयानी खाते थे. इट वॉज लाइक दैट. सो वी यूज्ड टू स्टार्ट सेलिंग बिरयानी 8 o'clock in the morning. Yeah, so the popularity is not only for one reason. I can say it's a quality. Apart from quality, there was a availability. We used to be available from morning 7 8 to night 1 or 2 o'clock. It was a price factor, it was a portion factor. बहुत सारे factors थे उसमें. अभी नियाज इज वेरी फेमस 1989 से 2026 तक, दैट्स अ लॉन्ग टाइम. तो वो टाइम पीरियड में आपके पास कोई सेलिब्रिटी गेस्ट आए हैं? बेलगाम में सेलिब्रिटीज मतलब जो भी आते हैं ऐसे, सो इफ दे आर नॉन वेजिटेरियन दे मेक अ पॉइंट के नियाज बिरयानी खाना है. सो बेलगाम में ऐसे 3-4 अच्छे जॉइंट्स हैं जहाँ पे बिरयानी ट्रेडिशनली लोगों को पता है कि यहाँ पे अच्छी मिलती है. सो ऐसे रेस्टोरेंट से खाते हैं. तो हमारे पास में भी बहुत सारे आते हैं. तो नाम नहीं लूंगा मैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो आते हैं और जाते हैं. बट यस, आवर गोवा ब्रांच अट्रैक्ट्स मोर सेलिब्रिटी बिकॉज देयर सेलिब्रिटीज का जो वहाँ पे मोमेंट है वो ज्यादा है. सो देयर मोर सेलिब्रिटीज कम इफ दे नोन टेस्ट ऑफ बिरयानी. तो उनको अगर पता है तो दे कम एंड ईट, दे एंजॉय. यस. So when your father started it back in 1989, what was the story behind the name Niyaz? कुछ deeper meaning है? Yeah, Niyaz is two, I'll say 3 reasons were there. जहाँ तक मुझे पता है, maybe wrong. So that time there was one popular restaurant called Nas. So Nas था तो हमको नाज से नियाज नजदीक होता था. तो that was one perception. The another approach was it is a name of my elder brother also. His name is Niyaz. And the third and which very prominent जो मुझे लगता है कि बहुत सही था उस टाइम पे, वो ये था कि नियाज means the communion, the abhishek, yeah, the prasad. So that's the reason we adopted that name. My father. Yes, yes. So there are 3 perceptions, different. अगर कुछ आपके ऐसे दिमाग में आता है कि आई वांट टू रीनेम नियाज समडे, डू यू हैव एनी नेम इन माइंड? No, blank. Okay, so now let's talk business. So it is said that in the restaurant industry, around 60% of the restaurants fail within the first 3 years. Do you agree with that? Yeah, I think number is little more. Because what number you get is हमारी इंडस्ट्री में so still we don't know कि restaurant industry is organized or unorganized. So whether it comes in the category of industry or not. Being the second largest employment provider in a country, our GDP growth is also, GDP contribution rate is also 1.5 or more than 1.5. After that also our industry is not that organized. So this number 60% has come from the organized. Unorganized तो और ज़्यादा है. So somewhere I feel कि between 1 to 5 years, 90% of restaurants get closed. That's true. So Niaz is running from over 36 years. And what do you think that you got right that others usually miss? First and foremost thing, so जब हमने रेस्टोरेंट शुरू किया, it was not our secondary business, it was our primary business, right? And that time the need was such within the family के after this there was nothing. तो हमको वो करना ही था. And the factor which was contributed that time was, I think, the survival, right? Not the security or the luxury. So the profit margins, what we still we believe on that year only, कि the profit margins जो हमने जो वर्कआउट किया उस टाइम पे, तो वो बहुत
थिन मार्जिन पे हमने काम किया. सो वी मेड इट श्योर कि लेट फर्स्ट इट मेक इट अवेलेबल फॉर द कस्टमर्स, अफोर्डेबल बनाएंगे. इसका इसका रेगुलर जो यूजेज, अपना जो फुटफॉल है रेस्टोरेंट, उसको मेंटेन करने के लिए हमको जो करना था हमने वो किया, कीपिंग बिहाइंड मार्जिन लाइंस अपार्ट, राइट. उसी इसलिए भी था क्योंकि कैपिटल वाज वेरी मिनिमल, देयर नो बिग कैपिटल इन्वॉल्व दैट टाइम. सो आई थिंक आवर ओन our that Niaz that time started maybe on in 2 lakh rupees, 1.5 2 lakh rupees. With that capital, restaurant has got started. It inclusive, I think it is inclusive of the buying own 400 square feet of land that time. So it was in like Khade Bazaar. Yeah. It was here only, the bus stand area. So now what parking you see na there, the 1/5 portion of that was a restaurant earlier when it started. So the entry itself was 6 feet. So if 3 people एक टाइम पे अंदर आने जाते थे, 2 लोग जा सकते थे, आ सकते थे. 6 feet का एंट्रेंस था. It was like that. तो मुझे क्या लगता है नियाज स्टार्टिंग से ही लाइक दे आर डूइंग समथिंग व्हिच इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, व्हिच इज कीपिंग देम इन द बिजनेस, अलाइव इन द बिजनेस. सो मुझे याद है मील्स ऑन व्हील्स सर्विस आपका था, दैट वाज बिग इन अर्ली 2000, राइट. तो बहुत पहले था, स्विगी एंड जोमेटो जैसे सर्विसेज से पहले. सो हाउ डिड दैट आइडिया कम टू योर माइंड? सिंपल था. सो आवर प्रेजेंस वाज हियर इन नॉर्थ बेलगाम, लेकिन साउथ बेलगाम डेवलप हो रहा था, एंड साउथ बेलगाम का परचेजिंग पावर भी अच्छा था. सो the saying goes this, कि customer doesn't come to you, go to the customer. So that makes that point click. And it was not like कि first time पे ऐसा कुछ venture हुआ था. So Domino's was there who used to serve, not in Belgaum. So मुझे पता था कि door delivery service है, कहीं पे चलता है. So we started in 1999. 1999 में we started a door delivery service, and people liked it very much. They reacted to it well. क्या कुछ नया कॉन्सेप्ट था बेलगाम के लिए? It was very new concept. So मेरे जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के जो लोग थे, वो लोग उस टाइम पे बोले थे कि ये क्या चल सकता है, ये ऐसा नहीं हो सकता. बिकॉज आई वांट टच विद सीनियर्स आल्सो, आई यूज्ड टू टेक द एडवाइस फ्रॉम देम. सो बोले थे मुझे कि क्या चल सकता है, ऐसा भी थोड़ी कोई करता है क्या, कौन घर पे खाना मंगा के खाएगा, और उसका कॉस्ट कितना आएगा. एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, थ्रेट. द सेकंड कॉल व्हिच केम्स टू द मील्स ऑन व्हील्स, मतलब डिलीवरी का, वाज कॉस्टिंग टू, उसका बिल बन रहा था तकरीबन 2000 रुपये का दैट टाइम, 2500 का. एंड एवरीवन गॉट हैप्पी, खाना पैक हुआ, एंड व्हेन वी रीच टू द गिवन एड्रेस, वो बोले कि हमने ऑर्डर नहीं किया. सो इट वाज अ प्रैंक कॉल मेड. सो बट वी डिडंट गिव अप. तो सब लोग उस टाइम पे निराश हो गए थे, ऐसा होगा तो क्या करेंगे करके, बट वी डिडंट गिव अप, चलता रहा. That happens a lot, like prank calls karte. Even now, like some people order and when the delivery man goes, they just don't pick up the call. Then Yes, अगर अभी वैसा होता है, then what do you do? so now तो we take the mobile number, right? So mobile number के बाद में भी बहुत सारे ये हो गए हैं. So there are more securities are there. Yeah. So we don't take call. तो हम लोग वापस फोन करके पूछ लेते हैं, ऐसा बड़ा कुछ ऑर्डर आता है इसमें कुछ ऐसा है तो. लेकिन अभी वो टेंडेंसी, यस, बाकी ब्रांड्स के साथ में होता होगा, नियाज के साथ में अभी ऐसा होना बहुत कम है. अभी बाकी के ब्रांड्स में अगर ऐसा होता है तो थोड़ी देर के लिए बैन हो जाता है. या अगर एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पे अगर आप करेंगे तो यू विल गेट बैन, you will get banned or you will be fined also. Yeah. What's the toughest lesson that you've learned so far, and something that really changed your perspective? Like a business lesson. Yeah. So see, हमारी इंडस्ट्री में every day is a new day. So there is nothing but one thing which makes me very, मतलब इसमें ऐसा है कि नज़र हटी तो दुर्घटना घटी. So I have to be very alert on बिजनेस के डेवलपमेंट्स को वगैरह को लेकर के, बिकॉज एज आई सेड के अनऑर्गेनाइज्ड है, तो इसमें अनस्किल्ड स्टाफ बहुत है. कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, क्वालिटी डिलीवर करना है, इज अ वेरी बिग चैलेंज. सो मुझे आज तक ऐसा मौका नहीं मिला जहाँ पे मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मेरा दिन अच्छा गया है एंड बिजनेस बहुत अच्छा हुआ है विदाउट एनी कंप्लेंट्स है, या मैंने केटरिंग कोई की है तो मुझे सेटिस्फाइड हुआ है कि ये केटरिंग बहुत अच्छी हुई है, ये की है, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ डूइंग. एंड आई थिंक हर दिन में जो नई चीज़ें होती है ना, आई लर्न फ्रॉम. देयर इज नथिंग स्पेसिफिक कि किसी एक चीज़ ने मुझे चेंज कर दिया. मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता होगा किसी के साथ में, बिकॉज या आदमी धीरे धीरे सीखते सीखते चेंज हो जाता है. तो एक चीज़ कोई ऐसी होगी ऐसा तो नहीं लगता. बट यस, आई फील के बिजनेस में, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर जो हम लोग खुद अपने लिए पसंद करते हैं वो हमको गेस्ट के लिए ऑफर करना चाहिए.
सो वो एक जो रहता है मतलब कि कस्टमर है, आएगा खाएगा चले जाएगा, उसको कुछ फिक्र नहीं है। इफ टूरिस्ट जगह पे जहाँ पे रहता है, तो इफ यू गो टू द एनी ढाबा एंड ऑल, दे डोंट केयर डैम अबाउट यू और द प्रोडक्ट और द हाइजीन, और ये उनको पता है कि लोग आएंगे जाएंगे, उनको खाना ही है। बट आई डोंट टेक इट दैट कैजुअल, सो आई टेक इट वेरी सीरियस। आप शार्क टैंक देखते हो? शार्क टैंक इंडिया? नहीं, कभी नहीं देखा। सो मैं शार्क टैंक बहुत देखता हूँ। हाँ। सो व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज दैट अभी जो भी फूड रिलेटेड स्टार्टअप्स जो आ रहे हैं नए, वो पूरा बेस्ड है क्लाउड किचन पे। सो क्योंकि कॉस्ट एफिशिएंट रहता है, डिलीवरी पे उतना ही उनको फोकस करना होता है। सो डू यू थिंक कि ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट्स आपके जैसे यहाँ के जैसे फ्यूचर में अडाप्ट करेंगे क्लाउड किचन को, या स्टिक करेंगे डाइनिंग के साथ? आई डोंट नो आपका कितना डेप्थ इसके अंदर नॉलेज है, बट इफ यू आस्क मी कि क्लाउड किचन इज नॉट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस एनी मोर। एंड क्लाउड किचन में मैं जितने भी नए वेंचर्स देखता हूँ, इसमें प्रोफेशनल्स बहुत कम हैं। अगर कोई हैं भी क्लाउड किचन में जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो ये वेंचर कैपिटलिस्ट का मनी है या फिर इन्वेस्टर्स का पैसा है, उसमें लेकर के कर रहे हैं। आई हैव नॉट सीन अ सिंगल ब्रांड, मतलब जितना भी मेरा इंटरेक्शन है, जो सिर्फ ये बोलता है कि फैमिली ओन बिजनेस है एंड दे आर डूइंग वेरी गुड ऑन अ क्लाउड किचन। नहीं देखा मैं कोई ऐसा। हाँ, हैंड टू माउथ किसी का हो सकता है, बट दैट्स नॉट अ बिजनेस। दे डोंट नो कि कल उनको अगर कुछ हो सकता है तो वो बिजनेस में रहेंगे या नहीं। यस, जहाँ पे बिजनेस हो रहा है सीरियस में, जिसके पास में अपना 5 साल 10 साल का विजन है, और ये उसमें मुझे क्लाउड किचन में ऐसा दिखता नहीं। अपार्ट फ्रॉम ये कि आपने जो शार्क टैंक में जो बताया, कि मैंने जितना भी स्टार्टअप्स को देखा, या मेरे पास में जितने भी स्टार्टअप्स के जैसे स्टोरीज, या फिर हम लोग जितना भी ये करते हैं, उसमें ये है कि देयर इज सम आइडियाज विच कम टू माइंड, एंड वो बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत अच्छा है, एंड एवरीथिंग इज पिंक, गुड, अच्छा लग रहा है। बट फैक्ट में एक्चुअल में उसे इम्प्लीमेंट करके उसे रोल आउट करने के लिए यू रिक्वायर एक्सपीरियंस। Experience requires a patience. Patience requires again a knowledge and a wisdom. So ये आइडिया से और ये दोनों से बहुत दूर है। आइडियाज कैन कम एनी टाइम। मतलब मैं तो देखा हूँ कि मेरे स्टीवर्ड्स के पास में, मेरे कैप्टन के पास में ऐसे ऐसे आइडियाज आते हैं जो वाव रहते हैं, लेकिन क्या मैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, या वो सर्वाइवल उसके अंदर है या नहीं। सो ये एक जज करना, आई डोंट नो शार्क टैंक्स इसको कैसे जज करते हैं और कैसे करते हैं, शार्क टैंक के पीछे का सीन क्या है उसके अंदर। यस यस। सो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर है। और क्लाउड किचन, यस, आई एम इन अ बिजनेस। मेरा गोवा कोल्हापुर का मेरा जो आउटलेट है, सो आई हैव 1 किचन, बट आई हैव 3 क्लाउड किचन इन दैट रनिंग, 4 in fact, 4 cloud kitchens are there. 1 kitchen, multiple brands. So we do that. So like So kind of आप घुस गए हो क्लाउड किचन? yeah, but इसके पीछे रीजन क्या हुआ, why I did so. So if मुझे ओरिएंटल रेस्टोरेंट, ओरिएंटल फूड कुछ करना है, so I get a ओरिएंटल शेफ. ओरिएंटल शेफ आर जनरली वेरी कॉस्टली, बिकॉज ओरिएंटल का जितना नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट साइड में जितना डिमांड है और जितना उसका कल्चर है, उतना साउथ में नहीं है अभी, बहुत रेयर। यहाँ पे ओरिएंटल फूड के नाम पे गोभी मंचूरियन ये वो उतना ही लोग जानते हैं, बट नॉर्थ में स्टोरीज कंप्लीटली डिफरेंट। सो वहाँ पे लोग जापानीज ट्राई कर रहे हैं, एशियन फूड ट्राई कर रहे हैं, मल्टीपल लोग। सो वहाँ से कोई शेफ यहाँ नहीं आता। मैं किसी अच्छे शेफ को वहाँ से यहाँ लाऊं एंड उसे मैं अपने रेस्टोरेंट में लाके ये बोलूँ कि भाई यू मेक गोभी मंचूरियन, यू मेक चिल्ली, यू मेक ये वो, ही विल नॉट स्टे। सो हम लोगों ने क्या किया कि एक ब्रांड बनाया गलांगल, और उसमें हमने गलांगल इज आवर ब्रांड। सो हमने गलांगल ब्रांड बना करके उसको कोल्हापुर और बेलगाम में क्लाउड किचन पे चलता है, एक्सेप्टेड। मुझे 3-4 साल हुए, अभी तक मेरा सेटिस्फैक्टरी नहीं है उसमें, बट वी आर डूइंग दैट कि हम लोग गलांगल को क्लाउड किचन के तौर पे लॉन्च करते हैं। व्हाई? सो इफ आई से कस्टमर के मेरे पास में बिरयानी का, पीपल एवरीवन नोज दैट कि आई एम गुड इन बिरयानी, लेकिन मुझे पता है कि मैं ओरिएंटल में भी कुछ कर सकता हूँ। लेकिन किसी के पास में मैं जाऊँ, अगर बोलूँ कि यार मैं जापानीज खाना खिलाना चाहता हूँ या फिर थाई खाना खिलाना चाहता हूँ, तो बोलेगा बस नहीं, तेरा बिरयानी खिला, मुझे दूसरा कुछ मत खिला। बिकॉज हीरो होंडा इफ यू स्टार्ट मेकिंग मोबाइल, यू विल नॉट बाय, है ना। हीरो अगर मोबाइल बना के बेचेगा, आप नहीं ये करेंगे। या निकॉन कहीं पे आकर के वो बोलेगा कि हम बाइक बना रहे हैं, बेचो, तो आप नहीं खरीदेंगे। सो इट इज लाइक दैट। सो अभी क्लाउड किचन इस तरह से आ रहे हैं। सो in my kitchen I have oriental department, I have given a name of Galangal, I have launched it on aggregator platform. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि अभी जो ट्रेडिशनल रीजनल फूड्स है, जैसे कि बिरयानी,
Do you think कि वो slowly अपना relevance lose कर रहे हैं क्योंकि younger generation is more towards quick snacking and cafes, तो वो ज़्यादा ऐसे full course meal खाते नहीं हैं वो लोग, तो do you think कि relevance lose होगा eventually? नहीं, लगता नहीं है ऐसा। इट लार्ज या अगर हम लोग स्पेसिफिक करके देखते हैं, अगर हम लोग एक फॉर एग्जांपल इन बेलगाम, सो अगर आप देखते हैं कि यंग जनरेशन क्या खा रही है, यंग जनरेशन में भी आप थोड़ा साइड करते हैं, देखते हैं कि वो बच्चे जो थोड़ा वेल टू डू फैमिली से हैं वो क्या कर रहे हैं, एंड वो ज़्यादातर ट्रेंड सीटर्स होते हैं, ठीक है। वो लोग थोड़ा बहुत कुछ करते हैं तो हमको लगता है कि वही सब हो रहा है, बट दैट इज नॉट फैक्ट। वो छोड़ करके भी बहुत कुछ हो रहा है, और बस इतना कि वो ग्लैमर में या फिर लोगों की नज़र में नहीं आता है कहीं से। सो आई फील कि अपना स्टेपल डाइट जो है हम लोग, मैं मेरे घर में या मेरे फैमिली के साथ में हफ्ते के 3 या 4 दफ़ा तो बाहर खाने के लिए जाता ही हूँ। सो 1 टाइम और 2 टाइम मैक्स टू मैक्स हम लोग ओरिएंटल या कॉन्टिनेंटल ट्राई कर सकते हैं। 3rd और 4th हमको वापस दाल चावल ही याद आता है। सो दैट्स अ स्टेपल, वो अपने इसमें उसको जाने में इतना टाइम, इतना जल्दी नहीं जाएगा, वो वापस आएगा। बट एक नया फैक्टर क्या आया है अभी कि जिसमें यंग जनरेशन, यू नो, इफ आई टेल यू कि ईट बिरयानी, यू विल नॉट ईट। इफ आई टेल यू कि बहरोज का कोई स्टोरी उसके पीछे मैं ज्वाइन करके दूंगा, यू विल ईट दैट। ब्रांडिंग ज़्यादा मैटर कर रहा है आजकल खाने में। सो इट इज नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इसको ब्रांडिंग कैसे करना है, राइट? तो अभी आपके कितने रेस्टोरेंट्स हैं अक्रॉस इंडिया? मेरे में 12 रेस्टोरेंट्स हैं। ओके, सो कहाँ कौन-कौन सी सिटीज़? बेलगाम में है, गोवा में है, कोल्हापुर है, पनवेल है, बीजापुर है। सो अभी अभी 12 आउटलेट्स हैं अक्रॉस इंडिया। सो एक आउटलेट से मल्टी सिटी प्रेजेंस में लाइक एस्टैब्लिश करना कैसा डिफिकल्ट होता है ना उनको? बहुत डिफिकल्ट रहता है, बहुत डिफिकल्ट रहता है। दैट्स व्हाई आई हैव स्टॉप दैट। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द डिलीवरी विच आई एम गिविंग इन अदर सिटीज, सो आई हैव स्टॉप। कोल्हापुर, गोवा सेटल्ड, 10 साल से ज़्यादा हो गया मुझे वहाँ पे बिजनेस करते हुए, तो आई एम ओके, क्वाइट ओके। बट नई सिटीज़ के अंदर चैलेंज है, चैलेंजेस आर द बिगेस्ट चैलेंज इज दिस के इफ यू गो टू एनी न्यू सिटी, वहाँ पे सी अभी जो अपना जो मेनू है वो डिवाइड होता है। सो देर इज समथिंग कॉल्ड योर स्पेशलिटी, योर शेफ स्पेशलिटी और ब्रांड का स्पेशलिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू कीप समथिंग लोकल का जो वहाँ पे चलता है वो रखना ही रखना है। उसके बाद में नेशनल, जैसे दाल चावल है नेशनल, वो मेनू में रहना ही रहना चाहिए, ये सारा। सो हमको नेशनल और अपना जो है स्पेशलिटी हम दे सकते हैं, लेकिन लोगों को अगर वहाँ का लोकल टच अगर नहीं मिलता है ना, तो मुश्किल होता है। फॉर मी गोइंग फ्रॉम बेलगाम टू कोल्हापुर इज वेरी इजी। फॉर मी गोइंग फ्रॉम बेलगाम टू नासिक इज इम्पॉसिबल इमीडिएटली, बहुत हो जाएगा। नहीं तो मुझे, अगर मैं नासिक जाता हूँ या पूना जाता हूँ, सो मुझे पूना पहुंचने के लिए यहाँ से कोल्हापुर हुआ है, कोल्हापुर से मुझे सातारा जाना पड़ेगा, सातारा से अगर मैं पूना जाता हूँ तो भी मुझे लगता है कि 10% लोग वहाँ पे पहचानेंगे। मुझे अगर पूना में जाना है और करना है अभी कुछ, एटलीस्ट आई हैव टू ओपन 3-4 आउटलेट्स, बिकॉज उसमें मार्केटिंग इतना होना चाहिए, तब जा करके सर्वाइव होता है। माई फूड इज गुड इन बेलगाम, बट आई एम गारंटी नहीं दे सकता कि वही फूड मेरा पूना में कोई पसंद करेगा और खाएगा। तो कभी कभी कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो रहता है वो मार्केटिंग एक्सपेंस को टच करना चालू करता है, तो डबल कैपिटल लगता है, क्योंकि मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी बढ़ जाती है। क्या अभी आपका मार्केटिंग एक्सपेंस ज़्यादा है? लाइक पहले बढ़ से रहा है, बढ़ ईयर ऑन ईयर इट इज इंक्रीजिंग। आई डोंट नो वेयर इट विल गो इन स्टॉप, बट इंक्रीजिंग। इतने ब्रांचेस में if something goes wrong, जैसे delayed orders है, staff shortage, customer complaints, how do you manage that? हाँ, उसके पीछे पूरी एक टीम है अपनी, CRM। सो वी टेक ऑल कंप्लेंट्स वेरी सीरियसली। मतलब आपको मैं बताऊं तो गूगल पे या फिर अपना जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग कस्टमर का फीडबैक कलेक्ट करते हैं, उसका रेट भी अच्छा है। एंड हमने HR के अंदर ऐसे पॉलिसीज बना के रखे हैं कि हाउ मेनी नंबर्स यू शुड कलेक्ट द फीडबैक, तो उसके ऊपर उनको ये मिलता है। तो ऐसे देयर इज अ सिस्टम। जैसे ही कंप्लेंट आते हैं तो डिवाइड होता है, मतलब एवरेज है या फिर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, सबके ऊपर जो है वो ट्रेनिंग मटेरियल बनता है। उसके ऊपर एक HR की टीम है, L&D टीम है, वो काम करके उनके ऊपर इंटरेक्ट करके उसे कम करने की कोशिश करते हैं। And इतने branches में how do you maintain that consistent food quality? सेंट्रल किचन। We are now at the central kitchen of Niaz with the head chef. Can you please give us a tour of this place? Yes, sure. This is our hot preparation area. Over here we make our gravies. This is a gravy making machine. Over there we are making barista, which we use in
in our biryani and various kind of preparations. These are the kitchen check. So all these protocols we follow every day. Like this is the Taylor John chart. Like we have to maintain this one so that bacteria contamination not happen. This is our paste making area. Over here we grind ginger, garlic, green chili, and other gravies. Over here we grind it, we make paste, and we use in our gravies in that section. Over here, this is our bakery section. We make our breads over here, freshly made bread every day, like shawarma roti, our reshmi paratha. We make it over here every day. Every day, fresh Every day production. fresh. Yes, this is our recipe bank. So this is very crucial part over here. We secure our recipes, which is very secret to us. So we maintain our secrecy. Okay. This is our cold section. Over here, like you can see, like we are marinating the chicken for tomorrow production. And over here, we maintain the temperature around 5 degrees centigrade, 0 to 5 degrees centigrade. This is cold area. This is our packaging section. Right now, it is closed because today is Sunday. So, yeah. So over here, we package our gravies, our various kind of products. These are the gravy chillers. We chill our gravy, bring into the temperature, and then we pack it so that the freshness will maintain. This is our blast freezer. So over here we bring the hot temperature as fast as we can down so that we can pack it and keep it in our cold storage. We have two cold storage. This is -1 and those are the positive one. So over here we maintain minus degree and over there we maintain our positive temperature. So you pack things from here and then you deliver Dispatch it. dispatch it to Yes. all the branches in Yes. Belgaum. Yes. But they don't go to other cities. Yes, right? it is. We have our branch in Kolhapur, we have our branch in Bambolim, we have our branch in Bijapur, Kognoli, Gokak. So everywhere we dispatch from here. From here Yes. itself. Okay. आप कितने साल से शेफ हो यहाँ पर? I recently joined over here, but my experience is vast. Yeah. I started my career in back in 2006. I'm an IHM graduate from Delhi. I based in Delhi only. I did my IHM from New Delhi only. Then I move to work in various kind of five-star hotels, restaurants, catering, and then I move. I have international experience as well. I worked with Disneyland for 5 years in the United States. I worked in Steigenbergen in Germany, and I worked in Canada as well. Like I came over here, I joined NIAS after I came back from Canada. Oh, that's Yes, amazing. That's my experience. इधर आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? Just to maintain the consistency, that is our crucial part, and which is like because we have 12 restaurants and we have a legacy of 35 years, so we have to maintain that legacy, and that is the day-to-day challenge we have to face, and we have to maintain our consistency in taste so that our customers will come back again and again to us. Okay. And what's the one task that you enjoy doing the most? Over here, being a chef, I wanted to be around the ingredients, yeah, new product development, research and development in various kind of things. So yes, Do you I like it. also make some recipes? Yes, over here I am making recipes for them. Yeah, we are going to implement new menu in Tilakwadi. Tilakwadi, we have a new restaurant. New, no, it's a old restaurant, but we are implementing new menu over there. So yes, we are making new recipes over there and introducing. For our audience, Yes. if someone is in the age of they've just passed college and they want to become a chef, तो आप उनको क्या advice दोगे? What should they do? Just be passionate. First, just be truthful to yourself and read your mind, like what you want to do first. And if you want to be a chef, then you have to just forget about your like kind of a personal life and be more involved in your profession. Like being a chef, yes. If you want to be a chef, you have to forget your other things. You have to involve your time. Most of your activities should according to the kitchen only. That's it for today. Yeah. Thank you so Thank much. you. Thank you. Like,
बेलगाम में एक बेलगाम। सेंट्रल किचन है एंड बाकी के Yeah. सब उधर से ही Okay, the central kitchen is a kind of a food factory जहाँ पे हम अपना प्री प्रिपरेशन पूरा होता है. So, for example, अगर मैं बताऊँ तो there is a technology called anybody can do everything, ABCDE. ठीक है. So that technology we have adopted. So I know कि मेरा रेसिपी एक है, उसको हम लोग ब्रेक करके अलग अलग जगह पे अलग अलग काम कराते हैं और फिर उसको असेंबल करते हैं. इट्स अ हेल्दी प्रैक्टिस जिसमें अपना क्वालिटी कंसिस्टेंट रहता है एंड सबसे इम्पोर्टेंट मुझे उसमें ऐसा लगता है उसमें हाइजीन बहुत अच्छा तरह कंट्रोल होता है, कॉस्ट बहुत अच्छी तरह कंट्रोल होता है. तो अभी व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज कि लोग रेस्टोरेंट बिजनेस को देखते हैं एंड बाहर से ऐसा लगता है कि ये तो इजी मनी मेकिंग बिजनेस है, बट जब वो एंटर करते हैं बिजनेस में तो तब उनको लॉसेस आने लगते हैं एंड उतना प्रॉफिट बनता नहीं, तो इवेंचुअली फेल होता है. सो एक सक्सेसफुल रेस्टोरेंट बनाने के लिए क्या दिमाग में रखना चाहिए? सी सक्सेस का फॉर्मूला कोई ऐसा एक सेट फॉर्मूला नहीं है. सो समटाइम्स अगर आपके पास में जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर आप लेके चलते हैं उतना ऑपरेशन एक्सपेंस का भी, ऑपरेटिंग कॉस्ट का भी लेके चले और 6 महीने तक समझ के चलें कि इट इज़ नॉट गोइंग टू यील्ड मी एनी मनी, आई हैव टू पंप मनी इन दैट इज ऑल्सो राइट. 6 महीने तक आपकी क्वालिटी हैम्पर नहीं होगी, यू विल नॉट गेट डिस्टर्ब कि मेरा पैसा नहीं है, यू आर प्रिपेयर्ड कि मेरा 6 महीना कुछ नहीं हो रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट अभी आपको जब आप कोई ब्रांड लॉन्च करते हैं या कोई रेस्टोरेंट लॉन्च करते हैं तो अगर आपको वो मार्केट का, अगर आपको वो प्रोडक्ट का, अगर आपको वो इंडस्ट्री का, अगर आपको उसके क्लाइंटल टारगेट क्लाइंटल का नॉलेज नहीं है तो डोंट डू इट. तो अगर आपको पता है तभी आप कीजिए, नहीं तो मत कीजिए. What do you think made Niaz really stand out from other restaurants? आई थिंक कंसिस्टेंसी. आई थिंक इसमें भी कोई एक फैक्टर नहीं है, मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी इज द वन. बीइंग इन अ टॉप, बीइंग इन ऑन द टॉप ऑफ मैनेजमेंट, मुझे जो लगता है वो कि आवर पॉलिसीज मैटर्स अ लॉट. सो मैंने इतनी कोई हमने पॉलिसीज इतना इरेशनल नहीं किए हैं, तो हमने जो भी पॉलिसीज रखी हैं, चाहे वो कस्टमर के रिलेशन के साथ में हो, चाहे वो रिजेक्शन का हो, चाहे बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि सम कस्टमर केम एंड वो बोलता है कि मैं पैसा नहीं दूंगा, तो वी डोंट फाइट, सेड ओके नो प्रॉब्लम. कोई कस्टमर ऐसे भी आते हैं कि वो जानबूझ करके कोई फूड में कंप्लेंट निकालते हैं, हम बोलते हैं ओके नो प्रॉब्लम. ऐसा भी नहीं है कि हम टोटल सबमिसिव हो जाते हैं. सो वी स्टैंड विथ आवर ये, बट हम लगते हैं कि पैसा ही नॉट एवरीथिंग, मनी इज नॉट एवरीथिंग. हॉस्पिटैलिटी, सर्विस, फूड रिक्वायरमेंट वहाँ पे जो है वो भी बहुत ज़रूरी रहता है. That's what that matters in restaurant. And like word of mouth is also very important. या अभी तो मार्केटिंग है, इसके पहले तो वर्ड ऑफ माउथ थी. तो अभी सपोज मैं एक पर्सन हूँ जिसको स्मॉल, एक मेरे पास कुछ नहीं है, मैं स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूँ, एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलना है मुझे, तो मेरे दिमाग में मुझे क्या रखना चाहिए? एक छोटा सा restaurant? आपको किसी रेस्टोरेंट में जाके काम करना चाहिए. मैं आई सजेस्ट के जितने लोग, जितने भी यंग जनरेशन है who wanted to make their career in entrepreneurship, आप जितना हो सकता है उतना एक अपना आइडियल या फिर ट्राई टू नो वर्क इन अ स्मॉल कंपनी जहाँ पे आपको 360 डिग्री का एक्सपीरियंस मिले, जहाँ पे बॉस जो है, जो भी आपके सीनियर रहेंगे, वो आपको बहुत कुछ सिखाएं. सो डायरेक्टली वेंचरिंग इनटू द बिजनेस, आई सजेस्ट कि कम से कम एक 5 साल किसी के साथ में रह करके काम करके सीखिए, उसके बाद में खुद का कीजिए. So 5 years minimum. Like 5 yeah. years. So if I work for 5 years एक रेस्टोरेंट में and मुझे एक्सपीरियंस मिल गया और मैं एक छोटा रेस्टोरेंट एस्टैब्लिश कर लिया अपना, नाउ अभी मैं इसको बिग कैसे बनाऊं एंड जब वो बड़ा हो जाएगा उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन कैसे करूं? Yeah. Scale up is not that big challenge. तो वो कॉपी पेस्ट का सवाल रहता है. Not that big challenge. हाँ, unless कि आपका वर्टिकल एक नया पूरा आप कर रहे हैं तो आपको चैलेंज आएगा. This 5 years of working with someone and 1 or 2 years you working on yourself will give you a hell lot of ideas, a lot of knowledge, strength, confidence. उसको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, राइट? बट एक चीज का उसमें ध्यान रखना चाहिए कि स्केल अप इट कम्स इन एंटरप्रेन्योर्स माइंड. इफ इट डजंट कम देन देयर इज सम प्रॉब्लम. नहीं है मैं इतने में खुश हूं बोलता है आदमी, तो देन देयर इज सम प्रॉब्लम. नेचुरली इन अ ब्रेन इट कम्स. एज फैक्टर रह सकता है उसमें, रिक्वायरमेंट रह सकती है, कुछ भी रह सकती है. बट कुछ भी करने से पहले यू हैव टू मेक श्योर दैट कि इट इज नॉट गोइंग टू हैम्पर योर लास्ट
और द प्रीवियस बिजनेस ब्रांड या फिर रेस्टोरेंट। नहीं तो क्या होता है कि यू हैव 10 आवर्स और 12 आवर्स टू गिव इन द बिजनेस, उसमें से 8 घंटे नए वेंचर को जाना चालू होते हैं, 4 आवर यहाँ पे कम होते हैं। मोस्टली एक नया ट्रेंड जो, इट इज़ माई ऑब्जर्वेशन, आई मे बी रॉन्ग, बट मैंने जो देखा है कि जो सेलिब्रिटी शेफ्स के जो रेस्टोरेंट्स हैं उसमें क्या होता है कि इफ़ आई गो टू रेस्टोरेंट आई गेट कनेक्ट विद द शेफ और आई गेट कनेक्ट विद द मैनेजर, आई गेट कनेक्ट विद द ओनर। एंड मेरे लिए वहाँ पे जाता हूँ तो एक रिलेशनशिप जो अपना एक वो रहता है ना, वो बिल्ड हो जाता है। सो मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, आई विल गेट अ गुड सर्विस, आई विल गेट अ गुड फूड, आई विल गेट अ क्विक रिस्पॉन्स ऑफ ऑल माई रिक्वायरमेंट। अगर वही ओनर नेक्स्ट डे वहाँ पे नहीं है एंड ही इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन अदर आउटलेट, एंड ये बंदा अगर जाता है, कस्टमर वहाँ पे जाता है एंड वो नहीं मिलता उसे ओनर वहाँ पे, उसे पता चलता है कि अभी वो वहाँ पे है और वहाँ पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, डेफिनेटली उसका इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है। इसको समझना चाहिए, समझ करके उसको कैसे हम लोग उसको मैकेनिज्म को लेके आएंगे कि जहाँ पे कस्टमर को ये फील ना हो, मैं अगर वहाँ पे नहीं भी हूँ तो उसे वो सर्विस, वो क्वालिटी और वहाँ पे वो अटेंशन उसको मिलना चाहिए। ये अगर आप कर सकते हैं तो फिर नेक्स्ट कीजिए। तो अभी नियाज के लिए कुछ न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है क्या? फ्रॉम माई एंड नो, नहीं, मैं कुछ नया नहीं सोच रहा हूँ, बिल्कुल जितना मुझे करना है वो है। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है कि जो टीम जिसके साथ में इतना साल काम किया ना, दे आर विथ फुल एनर्जी नाउ, दे वांटेड टू एक्सपांड। सो मेरी फिनांस की टीम है, मेरी एचआर की टीम है, मेरी ऑपरेशन की टीम है, एंड प्रोडक्शन वगैरह की जो टीम है, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू डू न्यू थिंग्स। एंड आई थिंक एक साल के अंदर कुछ नई नई चीज़ें, नए ब्रांड्स, और एक साल 2 साल में नए ब्रांड्स और नए वेंचर्स आ सकते हैं। तो अगर इन नेक्स्ट 5 ईयर नियाज में क्या डिफरेंट रहेगा ऐसे? बहुत डिफरेंस रहेगा, बहुत डिफरेंस रहेगा, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी को बहुत यूज़ कर रहे हैं। मेरा सेंट्रल किचन में बहुत सारे इक्विपमेंट, ऐसे मैकेनिज्म और जो आ गए हैं जहाँ पे हम लोग इतना साल नॉनवेज हैंडल करने के बाद में अभी कहीं पे ऐसा ऐसा लग रहा है कि नॉनवेज अभी जो हम लोग कर रहे हैं तो इट्स अ न्यू सब्जेक्ट, हमने ऐसा देखा नहीं था पहले। बहुत सारी चेंजेस आएंगे। Okay, let's do a new fun segment now. It's called rapid fire. Okay. So I'll ask you 5 questions and you have to answer them without thinking. Okay. What's your favorite food? My brain. Who's your favorite poet? Nida Fazli. Street food or fine dine? Fine dine. If Belgaum had to be represented by one dish and it would not be biryani, then what would it be? Kunda, obvious. One dish you secretly dislike but everyone else seems to love it. No thinking. मुझे कौन सा है डिश? पूरी भाजी। यस। पूरी भाजी। आई डोंट अंडरस्टैंड वो मिसड़ पूरी भाजी कैसे खाते अभी before we wrap things off, what's one advice you would give to the younger generation that they can follow to do? सो यंगर जनरेशन, मुझे यंगर जनरेशन को एक बताना है कि यंग जनरेशन को मुझे बताना है कि आपका अपब्रिंगिंग और आपका जनरेशन, आपका एजुकेशन और आपका अपब्रिंगिंग टोटल डिफरेंट है, राइट? सो व्हाट विल बी आउटकम ऑफ इट? समवेयर यू पीपल हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट कि हमको वो नहीं करना है जो हमारे बाप ने और हमारे दादा ने किया है, हमको वो नहीं करना है, हमको कुछ नया करना है। यंग जनरेशन के दिमाग में है, डेफिनेटली डू दैट, बट उसके अंदर जो मिस्टेक्स भी हैं डैड और उन्होंने जो की थी आपके, वो भी मत कीजिए। वी नो दैट कि हमको जो हमारे फोर फादर से दुनिया जो मिली थी उसके अंदर उतना कुछ नहीं था, मतलब उस टाइम पे कंडीशंस भी नहीं थे ऐसे। हम जो आपको दे रहे हैं इससे अच्छा बनाना उसका काम है आपका। सो जो भी आपको मिलेगा, डोंट ट्राई टू बी लाइक अस, ट्राई टू बी बेटर देन अस। That's a great piece of advice. It was a pleasure to have you on our podcast. बहुत interesting podcast है. Thank you. Thank you. Sorry to make you guys waiting. No, it's fine. Okay. Thank you. चलो।